it was my first time fighting on a cruise ship in waters also. So I enjoyed it a lot, and I'm really grateful to MMA India, my federation, and my sensei Vikas Sharma sir, who gave me this opportunity to perform. And it was a rematch, so wonderful experience. I am representing one, my federation MMA India, and second Madhya Pradesh, my state, and then third my club Fight of Nights Martial Art Academy. We heard about your Goa connection with your father. Yes, he is in Railway Protection Force, and he is assistant sub inspector, and he recently got transferred to Madgaon, and he came here from his duty only. I don't know if I'm supposed to say this, but yeah, he came from his duty and just only to watch my match. So yes. So how was the feeling? Father is sitting in. This was actually the first match where my father was able to actually come and see me win a match or something like that. Live, yes. That's why he was so emotional. So yeah, my father was so emotional because of this only. He has seen me win, but on videos and all of those. But this was actually the first match where he came and I won. So yeah, that was very emotional for him and I both. More fight you are expecting in Goa? More competition? Definitely more competitions in Goa. I have fought karate competitions in Goa earlier, but this was the first for MMA. And this was such a wonderful and successful event that I am expecting another, events in the year. Which format of fight you enjoy more? Karate or mixed? Mixed martial arts, definitely mixed martial arts. Karate has given me a lot, but I enjoy doing mixed martial arts. It is a whole package. Once you won, okay, you have leveled your opponent with 2-2 EV. So when you will fight next with her. Let's see whenever the opportunity comes. And I always say this wasn't a challenge as much as it was an opportunity for me to prove that I am a better fighter, and I did that today. She is a brilliant fighter, I wouldn't deny. The last competition I had with her was a very good exchange, and that went on a split decision also. So she's a good fighter, but I'm just better, and I had to prove it. I had to correct the loss. So I did it. Vikas sir told about Lebanon fight. Lebanon, yes. Lebanon. So just tell about more about it. That was the Asian Mixed Martial Arts Championship, and it was my fourth international as an athlete of MMA. So in my previous internationals, I have landed one bronze medal in the World Championships, and this was the first ever where I have won a match and brought home the gold medal for India. Me and this one other girl, Khushbu Nishad, we both got gold medals for India, and this was the competition where our team, India, performed the best from all the internationals we have ever been to. Our team landed like 6 or 7 medals. 13 athletes landed 6-7 medals. That is a very good ratio. एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, और मैं तो मतलब इतना खुश हूँ ना, इतना मैनेज किया ना होटल ने और होटल के स्टाफ ने और MMA इंडिया ने, मतलब इतनी सी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आने से तब से हम गोवा आए हैं, आगे से आगे सब चीज़ें, मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा। इतना अच्छा ट्रीट, इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी वो नहीं किया। वेरी नाइस। और ऐसी फाइट, ऐसे क्रूज पे फाइट कहीं भी नहीं है। जैसे UFC सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड में, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्रूज पे। यस, क्रूज पे कितना मतलब लकी हूँ मैं, देखी भी पहली बार है फाइट, और उसको वहाँ पे लड़ने का मौका मिल गया, और मैं भगवान की दया से जीत भी गया, जीता हूँ। ये पैर ट्विस्ट हो गया था सेकंड राउंड में मेरा, और कट की आवाज़ आई थी बहुत जोर से। पर उस टाइम ये होता ना कि गिव अप कर देता तो ये टाइटल, ये प्राउड मोमेंट है जो अभी पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी जब तक मैं जीऊँगा, ये नहीं रह पाती। फिर मैं इस दर्द को सहन करके, अगर मैं दर्द को देख के गिव अप कर देता वहाँ, तो मतलब बस पछतावा रहता। फिर कल ये गदर तो ठीक हो जाता, लेकिन ये फील होता रहता कि यार उस टाइम मैंने थोड़ा सा और क्यों नहीं एफर्ट लगाया, तो आज कुछ और होती बात। तो वो नहीं रहा। स्पोर्ट्स में जर्नी कैसे, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आप MMA करे, उसके पहले क्या करते थे? पहले मैं रेसलिंग करता था, फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो मैंने 5-6 साल रेसलिंग करी है, मेरा नेशनल मेडल है। तो फिर मैं MMA को फॉलो करता था, मेरे को नॉलेज नहीं थी, लाइक एक फ़ैन। हम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं UFC वगैरह, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था। हाँ भाई, गेम MMA खबीब, फर्स्ट टाइम मैं खबीब को देखा था। तो उसके बाद फिर
रेसलिंग में ज़्यादा जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था मैं दे नहीं पाया था। तो मेरे MMA जैकी गैल होते हैं मेरे बड़े भैया, मेरे कोच हैं, मेरे गुरु, उन्होंने एकेडमी ओपन करी और उनके पास गया और मेरे को 1-1.5 साल हुआ अभी। उन्होंने मतलब मेरे सगे बेटे की तरह मेरे को ट्रीट किया, ट्रेनिंग दी। और मतलब आप देख सकते हो अभी आपने केस में भी देखा रिजल्ट 1-1.5 साल में ही। मैं अभी पिछले महीने लेबनान में खेल गया था एशिया चैम्पियनशिप, उससे पहले नेशनल में मैं गोल्ड हुआ हूँ और मीन्स 12-13 फाइट विन 3 लॉस हूँ। तो 1 साल में इतनी अचीवमेंट मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों की और मेरे कोच की। आज जीतने के बाद सुल्तान वाली फीलिंग आ गई? यस, सुल्तान कर दे चढ़ाई। जीतने के बाद फीलिंग यू नो अच्छी रहती है जीतने के बाद। फिर से गोवा आखिर फाइट करने के लिए पसंद करेंगे? ये कल करवा लो चाहिए, 1 साल में भी कर लूँगा मैं। इतनी अच्छी मूवमेंट, इतना प्राइड फील, ये शायद लाइफ में मिले तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ये मौका। Professional level of this kind, amateur and professional, it is of a first kind and happening in a casino ship. मतलब ये इस तरह का इवेंट है, मैं कहूँगा और प्राउडली कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड में आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि कैसीनो शिप के अंदर प्रोफेशनल बाउट और एमेच्योर बाउट हो रहे, अपर डेक पे हो रहे, इतनी अच्छी सुविधा फाइटरों को मिली है। इट इज़ लाइक टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स अमेजिंग। आई रियली अप्रिशिएट द मैजेस्टिक प्राइड ग्रुप विच हैज टेकन अ लॉट ऑफ पेन टू कंडक्ट दिस इवेंट, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले भी बॉक्सिंग का इवेंट किया था जहाँ हमारे देश के नामचीन बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था, कॉम्पीट किया था और MMA का इवेंट हो रहा था। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि ये अपने आप में एक अलग चीज़ पूरे दुनिया को नज़र आएगी, क्या पानी के समंदर के बीच के अंदर और केज लगा हुआ है, इतना सारा क्राउड है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका एक लेवल अलग जा रहा है जहाँ पे 6 से 7 कंट्रीज़ के लोग कॉम्पीट कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। तो बड़ा ही एक सुंदर मैं कह सकता हूँ रोमांचक एक दृश्य दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। सर और आगे कितने आगे कैसे कमर्शियल यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं गोवा में? डेफिनेटली गोवा हैज़ ऑलवेज बीन अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर मैनी पीपल। इंडियंस भी बहुत हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, अपने टूरिस्ट प्लेस है एंजॉय करते हैं, बीचेस लाइफ खाना पीना यहाँ पे एंजॉय करते हैं, बहुत चिल आउट प्लेस है। और फॉरनर्स गोवा फॉरनर्स के लिए भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हमेशा रहा है। हम तो आज से मैं 20 साल 25 साल पहले से गोवा आ रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है यूक्रेनियन रशियन यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं, मॉर्जिम बीच, बागा बीच पार्टीज, कलंगुट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक अलग सेटअप हो गया कि कैसीनो शिप के अंदर लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, वो फाइट को भी देख रहे हैं, वो फाइटर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद फाइटर के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सर गोवा में ये अभी कॉमनली देखने को नहीं मिलता, सो देयर आर टैलेंट कमिंग आउट फ्रॉम गोवा, यू सी। यस, नेक्स्ट टाइम अगर ये इवेंट होगा तो डेफिनेटली आप अपने लोकल गोवन बॉय या लड़की को देखोगे कॉम्पीट करते हुए, क्योंकि वो एक अपना एक अलग हम कहते हैं ना एक अपनापन एक अलग लगता है कि जब हमारा एक कोई लोकल यहाँ पे लड़ता है, क्राउड का भी एक अलग मनोबल होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंडिया कोई फॉरेनर से लड़ रहा है तो लोगों का अपने देश के लिए चिल्लाना ज़्यादा रहता है। जब उस बच्चे ने जीतने के बाद मृदुल ने कहा भारत माता की जय, तो पूरे पब्लिक के अंदर आप सुन सकते हो वो जय की एक गूंज एक अलग होती है। तो अपना देश होता है, भले हम कहाँ पे भी जाके आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, यही हमारी शान है। और इस तिरंगे के लिए शायद हमारे सैनिक भी वहाँ पे लड़ते हैं और स्पोर्ट्स के लिए हमारे एथलीट्स केज में लड़ते हैं। सर इंडिया का MMA कैसा रहा है? इंडियन MMA अभी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। जैसे आर्या ने अभी बताया कि ये लास्ट एशियन हमारे लिए सबसे सक्सेसफुल रहा, जहाँ हमारी दोनों बेटियों ने 2 गोल्ड मेडल लाए, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो इतना अच्छा रहा है कि आज MMA में इंटरनेशनली प्लेयर्स अपना एक मुकाम बना रहे हैं, भले वो एमेच्योर फाइट्स हो या प्रोफेशनल फाइट्स हो, एक अलग ही लेवल है। और मैं बताता हूँ आते हुए वक्त में आप देखोगे ये गेम ये सबसे ज़्यादा सुपर सीड होगा। ये गेम की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अभी जुलाई 4 को इस साल डोनाल्ड ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स में अपने आई थिंक अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है, क्या उनका जन्मदिन है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर MMA की फाइट्स उन्होंने UFC की रखी हुई। तो आप समझ सकते हो कि एक वर्ल्ड सबसे बड़ी वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री भी उन्होंने कोई और गेम को नहीं चूज़ किया, उन्होंने MMA को चूज़ किया। तो अपने आप में ये गेम की आप पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड ओवर में समझ सकते हैं। So what was the thought process behind organizing this MMA? This is happening first time in Goa. Okay, so basically
लास वेगस में, मकाओ में, यहाँ बड़े बड़े लेवल की फ़ाइट्स होती हैं, जिसे UFC MMA कहते हैं। वहाँ पे इस तरह की फ़ाइट्स आयोजन की जाती हैं। यहाँ पे हॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं और बड़ी ग्लैमराइज तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हमने एक कोशिश की है वैसे ही गेमिंग और ये ग्लैमर और साथ में MMA इसको मिक्स करके एक लोगों के सामने पैकेज पेश किया जाए, जिसमें MMA जो स्पोर्ट है, जिसको एक पुश की ज़रूरत है, एक धक्के की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ टूरिज़्म को बढ़ा सकें, इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स कर सकें यहाँ पे, ताकि दोनों साथ साथ चल सकें। तो इस सोच के साथ हम चले थे और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला हमें। वी गॉट अ फैंटास्टिक रिस्पांस। वी हैड फाइटर्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मोंटेनिग्रो, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, या एंड ऑफ कोर्स आवर ओन इंडियन फाइटर्स। इतना टैलेंट है भारत में, आई थिंक आज की फाइट्स में हमें पता चल गया, जिसमें से मृदुल जो कि आसाम से हैं, वो एशिया चैम्पियन हैं अपनी कैटेगरी में। सेम आर्या, वो भी MMA एशियन चैम्पियन है अपनी कैटेगरी में। और यही टैलेंट को हमारी एक सोच है कि एक बढ़ावे की, एक पुश की ज़रूरत है। तो उसी सोच के साथ हम चले थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जितनी तादाद में यहाँ पे आपने अटेंडेंस देखी, लोग आए, तो आई थिंक आप लोगों के ज़रिए भी ये इवेंट जो है काफ़ी और लोगों तक पहुँचेगी और हमारा प्लान है कि अगले साल इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएं और ज़्यादा हम बढ़िया तरीके से कर सकें। सो आई थिंक दैट वाज द इंटेंशन। Srinivas sir, with this you are passing on one message that casino is not just only about gambling. This is also entertainment. This is also sports. Yes, of course. Casino is just not gaming, but worldwide as well as in India. We are, besides gaming, we are promoting the sports, we are promoting the entertainment, and thereby we want to invite more and more people coming to Goa. And more important lesson which I can take from this is that in Goa also there is a lot of talent. The boys are doing MMA just for fitness. We want to give them a push. Next time, like how Assam, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan participated, even we want Goan boys and girls also to come in these sports, train hard. We will support them and give them a platform. From here they can also play national, they can also play international, and show that talent and showcase Goa as a place where there is a lot of talent for Goan boys and girls. So this is the start from. This is just a beginning, and this was just you can say trailer. Picture abhi baki. So we interviewed some of the fighters here. They were very happy. Their first time experiencing fight on the cruise. They're floating on the water and they're fighting. Exactly. तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये कॉन्सेप्ट बड़ा नया है इंडिया में। सो प्रेरणा हमने इंटरनेशनली ली है वहाँ से और उसी सोच के साथ हम चले हैं। और आज आपने जिस तरह से रिस्पांस देखा, जो फाइटर्स भी आए और जिस तरह से मीडिया ने भी कवर इसको किया, हमारे चैनल पे हमने काफ़ी इसको लाइव स्ट्रीम भी किया, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और क्या होता है ना कि मैं जब फाइटर से बात कर रहा था, उनका यही मानना था कि सर हमने बहुत जगह फाइट की है, बट इस लेवल का ग्लैमर एक क्रूज शिप पे इन द मिडल ऑफ ए रिवर और इतनी ऑडियंस के साथ सर हमने इंडिया में देखा नहीं। सो वही कह रहे थे, काफ़ी बच्चों की स्टोरी है, जैसे आपने सुना होगा आर्या एशियन चैम्पियन है, आज उन्होंने निर्जला को हराया, फिर से हराया, वो भावुक हो गई। तो उन्होंने अपने जब पिताजी को देखा कि हमारे पास कई बार कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमने स्ट्रगल करके हम यहाँ पे आए, कई बार पैसे नहीं होते कि हम बेसिक चीज़ों को पूरा कर सके, ट्रेनिंग तो दूर की बात है। सो हमारी आगे यही कोशिश रहेगी, ऐसे बच्चियों को छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से इन्हें स्पॉट किया जाए। जैसे कि श्रीनिवास जी ने भी बताया, इवन गोवा में भी MMA जो है अब शुरू हुआ है। हम उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि आगे अगले साल जब ये हो तो वो भी इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। जब एक मुझे लगता है आर्या ने फाइट की, बाद में जीतने के बाद उसने बोला भारत माता की जय, द फीलिंग से एक्सप्रेशन, उसका फादर भी यहाँ पे पोस्टेड है, तो कैसा था? यू नो मैं अभी हमारे चैनल मैजेस्टिक मोमेंट्स के लिए उसके फादर को भी मैंने इंटरव्यू किया अभी पीछे बैक स्टेज में। तो उनके फादर साहब जैसे ही सामने आए और बेटी के उन्होंने कंधे पे वो MMA की बेल्ट देखी, वो भावुक होके जो फुट के रोए, यू नो मेरे तो अभी बात करते करते रोंगटे खड़े हो गए। यू नो इट इज़ सो इमोशनल एंड डिफिकल्ट टाइम्स बिकॉज शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड।
सो उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी सपोर्ट किया, अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग लड़कियों को इस स्पेशली इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं आने देते, बट कहते कि मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया तो मैं ये सपना साकार कर पाई। तो उसके पिताजी ने भी यही कहा कि सर ऐसे इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो आना चाहती हैं बट उन्हें दिखता नहीं, देयर इज़ नो मनी इन द स्पोर्ट। उनको दिखता है कि देयर इज़ नोबडी टू ट्रेन देम एंड इट कुड बी एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट अगर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ ना हो तो। सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स की और ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को सामने आगे आना चाहिए ऐसे नॉट सो पॉपुलर स्पोर्ट्स, ताकि जो बच्चियाँ इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी एक मौका दिया जाए। Okay, can we expect more such game fights in Goa? Yes, not only fights, but see, as one of the fighters said, in India, cricket is the religion. But besides the race, of course, we all love cricket and we all are cricket fans. But besides cricket, there are a lot of other games which are with talent, and badminton is being promoted on a big scale. Similarly, these games which are not yet promoted. Last year we had a boxing championship, and then before that we had a Punjab championship, All India Punjab championship, and now this time we had MMA, and we want to promote not only MMA, we want to promote a lot of other games where Exposure is required, push is required, and with our little effort we can produce some players, talents who can participate for and win for medals for India. And today is the best part of today was two international fighters versus Indian fighters were there, and India won 2-0, and that was the best thing. I saw Sagar Chillar. He gone through an injury in the first round. Still he managed to win. yes, फैंटास्टिक फाइट। और ये लड़कों में इतना जज्बा है, इतना पैशन है, कमी है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। वही बात कर रहे थे सारे बार कि सर हम इंटरनेशनली लड़ना चाहते हैं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। सो आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस अगर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं। और जैसे कि अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे, अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि इसको एक और अलग लेवल पे लेके जाने की। हम चाहते हैं कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म साथ में जुड़ें, हम कोशिश करेंगे वो करने की, क्योंकि उससे क्या होगा, एक और ऑडियंस हमें मिलेगी जो इस स्पोर्ट्स को ज़रूरत है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की यंग जनरेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर में बिजी रहते हैं। उनको ये फिजिकल फिटनेस वाला एक गेम इंट्रोड्यूस किया जाए, उनमें ये पैशन क्रिएट किया जाए, ताकि वो घर के अंदर बैठ के या रूम के अंदर बैठ के वीडियो गेम खेलने से अच्छा है वो बाहर आए, अपनी एनर्जी को एक अच्छी तरह से चैनलाइज करें। हमारी कोशिश है कि दे गेट एन एक्सपोजर, देयर एनर्जी गेट्स चैनलाइज्ड एंड दे विल बी एबल टू डू good for themselves, good for the state, good for the country, and good for the nation. Thank you.